خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے گزشتہ روز اجلاس میں ہلڑ بازی اور گالم گلوچ کرنے والے 7 اراکین اسمبلی کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنے والے حکومتی اراکین علی نواز اعوان، عبد المجید خان اور فہیم خان شامل ہیں، جبکہ جن پر قومی اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی، جبکہ اپوزیشن ارکان میں سے شیخ روہیل اصغر، آغا رفیع اللہ، حامد حمید پر قومی اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ایوان کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے گزشتہ روز اجلاس میں ہلڑ بازی اور گالم گلوچ کرنے والے 7 اراکین اسمبلی کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنے والے حکومتی اراکین میں سے علی نواز اعوان، عبد المجید خان اور فہیم اشرف شامل ہیں، جبکہ جن قومی اسمبلی کی حدود پر داخلہ پر پابندی لگائی گئی، جبکہ اپوزیشن ارکان میں سے شیخ روہیل اصغر، آغا رفیع اللہ، حامد حمید پر قومی اسمبلی کی حدود میں داخلے پر پابندی لگائی گئی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنے والے حکومتی اراکین میں سے علی نواز اعوان، عبد المجید خان اور فہیم خان شامل ہیں، جن پر قومی اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ اپوزیشن ارکان میں سے شیخ روہیل اصغر، آغا رفیع اللہ، حامد حمید پر قومی اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کو ایوان زیرے میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور اسپیکر اسد کیسر کی ملاقات کے دوران ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز اسمبلی اجلاس کے دوران ایوان میں دونوں جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی۔ ایوان کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کروں گا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے، جس میں بجٹ اجلاس سے متعلق لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شازیہ میری اور نوید قمر بھی ملاقات میں موجود تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے بھی ملاقات میں شریک تھی۔ ملکہ بخاری نے کہا ہے کہ نون لیگ قبضہ گروپس اور گنڈا گردوں کی جماعت بن چکی ہے۔ اپوزیشن کے رویے سے کوئی خاتون رکن پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پارلیمنٹ میں آنے پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ایم این اے ملکہ بخاری نے زرتاج گل اور دیگر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے سیاہ دن تھا۔ کل میری ذاتی طور پر تضحیک اور تذلیل ہوئی ہے۔ پارلیمان میں خاتون ممبران کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ خاتون رکن اسمبلی کی بائیں آنکھ کے کورنیا پر زخم آیا ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ گزشتہ روز رکن قومی اسمبلی ملکہ بخاری پر اپوزیشن نے حملہ کیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق خاتون رکن اسمبلی کی بائیں آنکھ کورنیا پر زخم آیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی میں ملوث ارکان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جماعت کی تفریق سے آزاد ہو کر ایکشن ہونا چاہیے۔
گورنر پنجاب چودھری سرور نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اراکین اسمبلی لاکھوں ووٹ لے کر ایوان میں پہنچے ہیں۔ پاکستان کی عوام اراکین اسمبلی کا پارلیمنٹ میں رویہ دیکھ کر انہیں دکھ ہوا ہے۔ اپوزیشن بجٹ میں ووٹ نہیں دینا چاہتی تو کوئی نہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ حکومت نے اس مرتبہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا، بجٹ میں خامیاں نکالنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو اپوزیشن نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ایف آئی اے میں پیشی کے معاملے سے متعلق شہباز شریف اور پاکستان پارٹی کے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایف آئی اے میں پیشی کے حوالے سے مشاورت کی گئی، جس کے بعد نواز شریف نے شہباز شریف کو ایف آئی اے میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ ایف آئی اے میں پیشی کے معاملے سے متعلق شہباز شریف اور پارٹی قائد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایف آئی اے میں پیشی کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، جس کے بعد نواز شریف نے شہباز شریف کو ایف آئی اے میں پیش ہونے کی ہدایت بھی کی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں عوام کی بات نہیں ہو سکتی۔ وزیر گالیاں دے کر بھی شہباز شریف کی تقریر نہ روک سکے۔ ملک میں سرکس اور تماشا لگا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں بجٹ تقریر کی بجائے کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں، وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے۔ ملکہ بخاری کی ویڈیو موجود ہے، ان کے اپنے ہی ساتھی نے کتاب مار کر آنکھ زخمی کی ہے۔ آج یہ پریس کانفرنسز کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج سیف سٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی عمران خان کے ہمراہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر اعظم کو سیف سٹی کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان 100 موٹر سائیکلوں پر مشتمل اسکواڈ کا افتتاحی کریں گے، جبکہ خصوصی موٹر سائیکل اسکواڈ وفاقی دارالحکومت کی پیٹرولنگ پر مامور ہوگا۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے اسکواڈ پر 30 کروڑ کی لاگت آئی ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے عسکری حکام کو ہدایت کی ہے کہ ورکنگ باؤنڈری کنٹرول لائن اور پاک افغان سرحد پر بھی بہترین آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ آرمی چیف نے یہ ہدایت فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اجلاس میں شرکاء سے خطاب میں کہی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں 2 روزہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کور کمانڈر، پرنسپل سٹاف افسران اور فارمیشن کمانڈر نے خصوصی شرکت کی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور پاکستان کا دل اور معاشی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب روپے مختص کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ لاہور کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ شہر میں انفراسٹرکچر کے میگا پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ مختلف منصوبوں کی تکمیل سے لاہور کے شہریوں کو آمدرفت کی بے پناہ سہولتیں میسر آئیں گی۔ وفاقی حکومت نے عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہوئے اس میں 2 روپے 13 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول اب 110 روپے 70 پیسے فی لیٹر میں فروخت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 3 پیسے مہنگا کر دیا گیا، اب اس کی نئی قیمت 79 روپے 68 پیسے ہو گئی ہے۔
बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे अदालत की कार्रवाई के मुतालिक। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 माह के अंदर ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मजीद वक्त हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी से मुतालिक केस का फैसला 30 जून तक मुअख्खर कर दिया। लाहौर एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी से मुतालिक केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने मरियम नवाज और दीगर दावेदारों के एतराज़ात की दरखास्तों पर समाअत की है। पीटीआई ने मुबैना फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी अकाउंट्स तक रसाई मांग ली है। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के अकाउंट्स की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे मुहलिक वायरस के हवाले से। नाज़रीन, कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,828 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,44,065 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,038 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,44,379, सिंध में 3,29,279, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,313 और आज़ाद कश्मीर में 19,822 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के खात्मे के मिशन पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मजमूई तौर पर 1,17,45,889 खुराकें इस्तेमाल की जा चुकी हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,69,274 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई है। सूबे में इस वक्त 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। अब कुछ बात करेंगे माली साल 2021 और 22 के बजट के हवाले से। बलूचिस्तान का माली साल 2021 और 22 का बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। सूबे के नए माली साल के बजट का हजम 5,000 अरब होगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 18 जून को तलब कर लिया गया। आपको आगाह करें कि सूबे के नए माली साल के बजट का हजम 500 अरब रुपए होगा। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 18 जून को तलब किया गया, जो कि शाम 4 बजे स्पीकर अब्दुल कुद्दूस की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में आइंदा माली साल का बजट भी पेश किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या पेश आया है, जिसमें एक खातून और मर्द ने मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की और इसमें धमाका खेज़ मवाद लगाने समेत इंतज़ामिया को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी है। काबिज फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। गाजी फौज ने श्रीनगर के नवाही इलाके नौगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवान को शहीद किया। काबिज फौज ने इलाके में घर घर तलाशी भी ली। कार्रवाई में भारतीय पुलिस और CRPF के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया है। कश्मीरी अवाम ने जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ भी एहतजाज किया है।
आरिफ वाला में बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। कांस्टेबल शुएब साकिब, जिसने आरिफ वाला के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, डकैत गैंग के साथ मुजाहिमत की, जिससे 4 गोलियां लगने के बावजूद डकैतियों को गिरफ्तार करवाने में कामयाबी हासिल हुई। 4 गोलियां लगने से हालत तशवीशनाक होने पर कांस्टेबल को साहिवाल रेफर कर दिया, जहां पर कांस्टेबल शुएब साकिब जेर इलाज है। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक इब्रार खोखर की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि जोही शहर हीरो खान में सफाई के नाकस इंतजामात होने की वजह से शहर भर में गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। शहर की मेन शाहराहों और रास्तों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नादिर मस्तोई की इस रिपोर्ट में। तहसील जोही के शहर हीरो खान में एडमिनिस्ट्रेटर जोही और यूसी सेक्रेटरी की नाअहली करप्शन के बाइस शहर की सफाई ताहाल ना हो सकी। सफाई ना होने की वजह से शहर और गर्दनवाह गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए हैं, जबकि आने वाली हर माह की बजट कागजी कार्रवाई में पूरी की जाती है। कोई ऐसी अस्पताल नहीं है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। हम बस वालों को जो अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमारा कुछ आर सुन लें। बड़ा शहर हीरो खान जो कि गंदगी का ढेर बना हुआ है, बड़ा शहर जिसकी आबादी 10,000 है और इस पर कोई भी हमारे MPA MLA हमारे शहर को नज़रअंदाज बना रहे हैं और म्यूनसिपल का अमला बिल्कुल गायब है। तो हम पुरजोर अपील करते हैं जबल जमाली से तो हमारे शहर की सफाई सुथराई का अमला किया जाए। शहरियों ने DC दादू AC जोही से मुतालबा करते हुए कहा कि सफाई के हवाले से जल्द इक़दामात लेकर शहर को साफ सुथरा किया जाए। नादर मस्तोई, स्टार एशिया न्यूज़, जोही। है साहिवाल से, जहां पर थाना गला मंडी का इलाका मुनशियात फरोशी का गढ़ बन चुका है। बाहर से आए मुनशियात फरोशों ने भी थाना गला मंडी के इलाके में डेरे जमा लिए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। आपको आगाह करते चलें कि साहिवाल से, जहां पर थाना गला मंडी का इलाका मुनशियात फरोशी का गढ़ बन चुका है, बाहर से आए मुनशियात फरोशों ने भी थाना गला मंडी के इलाके में डेरे जमा लिए हैं। आपको आगाह करते चलें कि पुलिस इस वक्त आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। साहिवाल में दीदा दलेरी के साथ मुनशियात फरोश जो हैं मुनशियात का धंधा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, साहिवाल पंजाब भर में हीरोइन मंशियात फ़रोख्त करने वाला बड़ा शहर बनता जा रहा है। साहिवाल थाना गला मंडी के इलाका बाहर वाला अड्डा में नशा करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी कोई नौजवान नशा करते हुए खालके हकीकी को जा मिलता है। थाना गला मंडी के इलाका में आए रोज़ नशा करने वालों की लाश मिलती है, जिसको उसके वर्सा अगले रोज़ उठा के ले जाते हैं। इससे कबल GT रोड ग्लोच फिलिंग स्टेशन के करीब भी एक शख्स की लाश मिली थी। साहिवाल में नशे से मरने वालों की तादाद मुतअद्दिद के करीब बताई जा रही है। मौजूदा अमवात से कबल साहिवाल के कई इलाकों में नशे की हालत में मुतअद्दिद अमवात हो चुकी हैं। साहिवाल में दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुकामी हीरोइन के आदी यहाँ बसेरा करने के बाद नशे की हालत में ही मुर्दा पाए जाते हैं।
साहिवाल में बढ़ती मंशियात फरोशी ने न जाने कितने नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया है। कितनी माएँ, बच्चे और बीवियां लाचारगी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इन नशा करने वालों से जब साहिवाल के मीडिया ने सवाल किया कि आप इस नशे से अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेते, तो उन नशेइयों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम कई दफ़ा अपना इलाज करवा चुके हैं, इस लानत को अपने आप से दूर भी कर चुके हैं, लेकिन मंशियात फरोश हमको चंद दिन फ्री मंशियात देकर मीठी बातों में वर्गलाकर हमें फिर इस लानत का आदी बना देते हैं। हम अपनी खूबसूरत ज़िंदगियों को इन मंशियात फरोशों की वजह से तबाह कर बैठे हैं। साहिवाल की सिविल सोसाइटी, अंजुमन हकूक़ शहरियान व दीगर मजहबी जमातों ने साहिवाल में बढ़ती हुई मंशियात फरोशी की रोकथाम के लिए RPO साहिवाल, DPO साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब कुछ बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शकरगर में बरहना करके तशद्दुद करने की वीडियो वायरल कर दी गई है। शकरगर में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मौजा मोरली से आए नौजवान पर जूतों और मुक्कों से बरहना करके तशद्दुद किया गया। मुतासरा नौजवान को बरहना करके उठक बैठक और मुर्गा बनाया गया। बासर अफराद मुबैना तौर पर लड़की से मिलने के इल्ज़ाम पर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे हैं। गोजा में कायदे आज़म रोड पर इंतहाई तेज़ रफ्तार कार ने मुतादिद शहरियों को कुचल डाला। 2 अफराद शदीद ज़ख्मी, गाड़ी सवारों की फायरिंग और नामरूम शख्स ज़ख्मी हो गया। गोजा में तफसीलात के मुताबिक आपको आगाह करें कि मसरूफ़ तरीन शाहराह पर इंतहाई तेज़ रफ्तार कार ने मुतादिद शहरियों को कुचल डाला और दर्जन भर मोटरसाइकिलों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जिससे मुतादिद शहरी भी ज़ख्मी हुए, जिनमें से इंतहाई तशवीशनाक अवैस शरीफ और ज़मर नामी नौजवान हैं। गाड़ी सवारों की जानिब से फायरिंग भी की गई, जिससे ज़मर नामी नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं ज़िला कश्मीर से, जहां पर कबायली तसादुम थम न सके। मामूली बातों पर तसादुम, दर्जन के करीब अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। आज तंगवानी जमाल थाने की हदूद में मुल्क और चुलियानी कबाइल के दरमियान 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। तसादुम में लाठियों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ वक्त हुआ है मुल्क भर के इलाकाई खबरों का। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला में सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर जाए पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस ने इरफान उर्फ आलू डकैत और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला में मुलजमान के कब्जा से 3 लाख रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिलें और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। एक मुलजिम से मुनशियात फरोश भी गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिम से 1900 ग्राम चरस और नकदी बरामद कर ली है। मुलजमान मुतादिद मुकदमात में थाना सिविल लाइन पुलिस को मतलूब था। जैकबाबाद में थैलीसीमिया सेंटर को बंद हुए 1 साल से जायद, लेकिन 500 से जायद मरीज बच्चे खून के अतिये से महरूम हो गए। इसी मरीज बच्चों को सखर और कराची ले जाने पर मजबूर हैं। आपको आगाह करते चलें कि जैकबाबाद में थैलीसीमिया सेंटर को बंद हुए 1 साल से जायद हो गए, लेकिन 500 से जायद मरीज बच्चे खून के अतिये से महरूम हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद खरल से। जी जाहिद खरल, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? बात की जाए, इस वक्त मौजूद है सेल हॉस्पिटल के। यहाँ पर थैलेसीमिया सेंटर काफ़ी अरसों से बंद है, बच्चे खून के लिए तड़प रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर आप ये बताएं, थैलेसीमिया सेंटर कितने अरसे से बंद है, कौन से मतलब क्या क्या है ये? थैलेसीमिया सेंटर जो है तकरीबन 2.5 सालों से बंद है। इस सेंटर को तकरीबन कायम अली शाह साहब ने वज़ीर आला था तो 2010 में इफ्तिताह किया था। बोर्ड भी पीछे लगा हुआ है इसका,
اور यहाँ पे हमारे तकरीबन 400 तक के मरीज़ हैं, बच्चे जो जिनको अशद ज़रूरत है खून की, अगर उनको खून नहीं मिलता तकरीबन वो मर जाते हैं, और 35 बच्चे अभी मर चुके हैं। हम सूबाई गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि भाई आप जो जैकाबाद है सिंध और बलूचिस्तान की संगम में है, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला शहर है, तकरीबन बलूचिस्तान के 2.5 डिवीज़न लोग यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए, और ये हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा आज खुद नोटिस लिया जाए कि भाई हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। अच्छा आप कैसे देख रहे हो, आखिर इस पे कौन जिम्मेदार है, किससे आप उम्मीद करते हो, कौन नोटिस लेगा तहसील सेंटर के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2.5 साल से ये देख रहा हूँ, हमने जो रैलियाँ और धरने में लगाए हैं इसके लिए कि भाई हमारे बच्चे यहाँ जो हैं 400 भी अपीलें की हैं, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को, वज़ीर सेहत को, सबको अपीलें की हैं कि भाई इस बच्चों का ख्याल करो, अभी बच्चे मर रहे हैं, हमारे गरीबों के बच्चे हैं, ये इलाज नहीं करा सकते, ये मर जाएंगे लेकिन क्या इलाज कराने के इसके पास पैसे नहीं है। हम वज़ीर सेहत साहब को भी इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये इसको तवज्जो दें, जो इसको बहाल करा जाए और बच्चों की सेहत और ज़िंदगी का ख्याल करके उसकी ज़िंदगियाँ बचाई जाए तो हर बड़ी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, ये मतलब फुल फोर्स नोटिस लेकर तहसील सेंटर को बहाल किया जिससे बच्चों की ज़िंदगी बच सके। जी जाहिद खरल, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुक करते हैं मलगदा चौक की जानिब। तो आपको बताएं कि मलगदा चौक में डकैती और चोरी की वारदातें थम न सकी। दिन दहाड़े डाकू मुजाहिमत पर फायर मारकर 2 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज पठान से। जी फयाज, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलगदा चौक मौजूद हूँ जहाँ पे डकैतियों और चोरियों का सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। ये थाना शबौर की हदूद है मलगदा चौक, और यहाँ पे एक हफ्ता से मुसलसल चोरियाँ और डकैतियाँ जारी हैं, जिसमें लोगों को अपनी इनको जानी नुकसान भी हुआ है कि फायर लगा, जख्मी हो चुके हैं, तो काफ़ी लोगों को माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो मेरे साथ एक मजरूब है, उनको अभी जस्ट 1 घंटा पहले फायर लगा है और उनके माली नुकसान भी हुआ है। कम से कम 2 लाख रुपए टोटल अमाउंट इनसे लेकर फरार हो गए। और थाना शबौर पुलिस की ये बेहिसी है कि वो जाए मौका पर गए हैं मगर फॉर्मेलिटी पूरी की है उन्होंने और चले गए। अभी तक ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ डकैती हुई है, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और फायर कैसे लगा। हम जी मंडी में गए थे जी मलगदा चौक, वहाँ से जी डंगर लेना था, डंगर तो बड़ा नहीं जी, वापसी में आए हैं तो आगे से जी वो आ गए स्कूटर वाले चाकू, उन्होंने आके जी आगे स्कूटर लाया, चला के स्कूटर में से चाबी निकाल ली। हम स्कूटर पे थे 3 जने जी, और उन्होंने मेरा सलवार वाली जेब में पैसे थे, उस पर मेरा हाथ था, मैंने हाथों उनको लगान नहीं दिया, उन्होंने मेरे पैर मारा तो उन्होंने पैसे निकाल लिए, मेरे ठुका ही मारा। कितने पैसे थे? 1.25 लाख। आपके कितने पैसे थे? 75,000। तो पुलिस वालों ने क्या कहा? मौके पे आए थे पुलिस वाले। कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराने की यकीन दहानी कराई उन्होंने? क्या है? तो आप क्या कहेंगे जी के उकाड़ा से? क्या कहना चाहिए? जी जैसा कि आपने ये मजरूब आदमियों की बात सुनी, उनका काफ़ी माली नुकसान भी हो चुका है और ये आप इंजरी देख सकते हैं कि इस आदमी का, ये बुजुर्ग आदमी है और इनका बाजू जख्मी हो चुका है। और इनकी डीपीओ उकाड़ा से और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पुरजोर अपील है कि इनकी शिकायत का अदाला किया जाए, मुजरम जो उनसे मुलज़म है डकैती के उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये बेहिसी है थाना शबौर के SHO की, इस हफ्ते में ये कम से कम 4 से 5वीं वारदात है और ये इनकी बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। फयाज, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद और STO इरिगेशन अहमदपुर लम्हा के हमरा दरिया के बंद का विजिट किया है।
खल में अमरोटी चौक पर सीवरेज का गंदा पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह बधायू भट्टी से। जी बधायू, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं? मौजूद है अमरोटी चौक पे, फुल सिटी में बड़ा मशहूर और पुराना है। यहाँ पे जामे मस्जिद भी मौजूद है और यहाँ पे पानी जो है दरिया का मंजर दिखाई दे रहा है। इस हवाले से हमने कुछ बातें करनी है शहरी के साथ, आइए बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पानी के हवाले। ये तो पहले TMO की नाअहली है, जिसकी वजह से ये गंदा पानी सारे शहर, करोड़ों रुपए बजट आती है हर माह में, वो हड़प करके करप्ट लोगों की हुक्मरानी है, उनका राज है। ये ड्रेनेज सिस्टम भी उस टाइम से ही ये ख़राब है, ये जुल्म की इंतहा है। हम बिलावल साहब चेयरमैन PP को भी अपील करते हैं और साईं मुराद अली शाह वज़ीर आला को भी अपील करते हैं कि आप खुदा रहा इस तहसील झुल पे कुछ तवज्जो दें और इन करप्ट लोगों का घेराव करें। और नेब को भी हम अपील करते हैं कि वो तवज्जो देकर इन TMO और जो करप्ट लोग ये पैसे हड़प कर रहे हैं, जो तरक्याती कामों के पैसे हड़प कर रहे हैं, शहर में कोई टके का काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। हुकूमत को अपील करते हैं, मुराद अली शाह को बोलते हैं, बिलावल साहब को बोलते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये सिंध हुकूमत जो है ना वफाक की नहीं है, पीपल्स पार्टी की है। बिलावल साहब ये सिंध तुम्हारी है, इस सिंध ने तुम्हारे को मान दिया है, शान दिया है, बेनजीर साहब को शान दिया है, उसकी वजह से तुम लोग बैठे। अल्लाह बधायू, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जामिया पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA बिलाल असगर वड़ाइच की ग्रेजुएशन की डिग्री जाली करार दे दी है। आपको आगाह करें कि अदालती हुक्म पर जामिया पंजाब की जानिब से 5 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसके मुताबिक जामिया पंजाब की डिग्री कंपनी ने तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया, जिसमें MPA बिलाल असगर वड़ाइच कसूरवार ठहराए हैं। पसरूर शहर रोड पर वाक़े गांव ईसा डोगरा में वाक़े मिनी पेट्रोल पंप पर अचानक आग भड़क उठी है। आग ने देखते ही देखते इर्द गिर्द की कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। आपको आगाह करते चले कि पसरूर के करीबी गांव ईसा डोगरा में नामालूम वजूहात की बिना पर मिनी पेट्रोल पंप पर अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते इर्द गिर्द की 3 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। पतोकी में वापडा ऑफिस में वापडा की 2 तंजीमों के दरमियान रेफरेंडम 2021 का इनेकाद किया गया, जिस पैगाम में वर्कर्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है और वोटिंग का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। सादिकाबाद में ASI मलिक सदीक ने चेक पोस्ट कोट सब्ज़र पर मशकूक शख्स को चेक किया। मशकूक शख्स से 1605 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मंडी अहमदाबाद में अफसोसनाक हादसा पेश आया। साहब की रोड पर ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट जाँ बहक हो गया, एक नौजवान जख्मी। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट जाँ बहक हो गई, जबकि नौजवान जख्मी हो गया। जख्मियों में स्टूडेंट बच्ची का भाई भी शामिल है। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए जख्मी को RCH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।